الرحمن الرحیم. میں نے ایک حمد لکھی تھی, اس کو میں شیئر کرنا چاہ رہا تھا. اس کا عنوان ہے یا حیو یا قیوم. سرمایہ دو جہاں ہے یا حیو یا قیوم, ہر مومن کی میراث یا حیو یا قیوم. قلب و جگر کو تر و تازہ کرے جو یا حیو یا قیوم. ہر چیز کی مشکل کشا ہے یا حیو یا قیوم. رحمت کی برسات یا حیو یا قیوم. ہر خوشی کی ابتدا اور انتہا یا حیو یا قیوم. جنت کی باد صبا یا حیو یا قیوم. پالے گا راز زندگی جو تھامے گا اللہ کی رسی کو. صراط مستقیم کی ابتدا یا حیو یا قیوم. بہت شکریہ. الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج فادر اینڈ سنس کے پلیٹ فارم سے نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہیں. آج کا موضوع بہت ہی امپورٹنٹ ہے کیونکہ 2-3 دن بعد عید الاضحیٰ انشاء اللہ تعالیٰ ہوگی. اور عید الاضحیٰ صرف عید کا نام نہیں ہے, اس کے پیچھے بہت بڑی سٹوری ہے. اس کے پیچھے بہت بڑی ایک جیسے کہتے ہیں نا کہ اسے کہتے ہیں فیسٹیول آف سیکریفائس, کہ اس میں ہمارے بہت ہی پیارے پیغمبر تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام. آپ نے اپنے اللہ تعالیٰ کے حکم پہ آپ رات کو سوئے تو آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نوید ہوئی کہ اپنے بیٹے کی حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کے بیٹے تھے, ان کی قربانی دینی ہے. آپ نے وہی میسیج اپنے بیٹے کو کنوے کیا اور آپ کے بیٹے نے بھی سرخم نیچے کر کے اللہ کی رضا میں راضی ہو کے اس چیز پہ رضامندی کا اظہار کیا. تو یہ ایک بہت بڑا سیکریفائس ہے کہ جس کو ہم بیان نہیں کر سکتے, کیونکہ یہ وہ مومنٹ ہے کہ انسان بڑے بڑے لوگوں میں یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ انسان کا زندگی سے کس کو پیار نہیں ہے, لیکن سیکریفائس ایک بہت بڑے جذبے کا نام ہے جس میں نہ کوئی سوچ نہ کوئی ریٹرن, صرف اللہ کی رضا میں راضی ہو. تو یہی چیز وہ مین میسج تھا جو کہ ہماری زندگیوں میں آج کل جس کی بہت کمی ہے, کہ اللہ کی رضا میں راضی ہونا, اور جس میں اللہ تعالیٰ اور پھر اللہ تعالیٰ خود ہی برکت ڈالتا ہے. تو ہمارے عالم اسلامیت میں بھی آج کل یہی دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے قرآن مجید میں کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَتَفَرَّقُوا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ کی رسی کو تھامے رکھو, تفرقے میں نہ کرو. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے جتنے بھی مسلمان ممالک ہیں وہ ایک پیج پہ اکٹھے نہیں ہو سکتے. تو یہی چیز کا اللہ تعالیٰ نے بہت پہلے ہمیں ایک اندیا دے دیا تھا کہ جتنے بھی مسلمان ہیں اگر وہ چاہتے ہیں کہ ان کی زندگی ایک اسٹرینتھ ایک ہو دنیا میں اور ان کی زندگی اچھی ہو سکے تو وہ یونٹی اسٹرینتھ, رائٹ. تو اب حالات جو ہیں اس وقت پوری دنیا میں سب سے زیادہ مسلمان ممالک ہیں, لیکن سب سے زیادہ مسلمان ہی سفر ہو رہے ہیں. دے آر سفرنگ بیکاز ڈیو ٹو دس فیکٹ. بہرحال یہ تو باتیں ہیں, لیکن عمل جو ہے وہ اگر یہ تو اللہ کی طرف سے ہدایت ہوتی ہے تو عمل کرتے ہیں جو بھی. تو یہ تو باتیں ہو گئی. تو ابو سے, اور آج بھائی جان ہیں اور ابو ہیں پروگرام میں, تو ابو اور بھائی جو ہے اس کے اوپر روشنی ڈالیں گے اور اینڈ میں بھی تھوڑی بہت ہی بات کریں گے. ہمارا موضوع ہوگا بیسیکلی عید ہم نے کیسے گزارتے ہیں. ہم ابو ذرا اس کے اوپر الیبوریٹ کریں گے, بھائی اور میں ذرا بتائیں گے کہ ہم عید کیسے گزارتے ہیں, پاکستان میں کیسے عید گزاری اور یہاں پہ کیسے عید گزارتے ہیں, اور ہماری عید کا کیا ایکسپیرینسز ہیں. تو اوور ٹو ابو جان. ابو جو ہے اس کے اوپر جو ہے روشنی ڈالیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ آپ نے بتایا ہے کہ اس عید کے پیچھے ایک بہت بڑا واقعہ ہے, اور یہ واقعہ جو ہے اس لحاظ سے بہت خوبصورت ایک انداز ہے امام الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام.
میں نے امام الانبیاء سے کہا ہے کہ آپ ہی نے دعا فرمائی تھی اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ میری نسل میں سے نبی پیدا کر. تو آپ کی نسل میں سے ایک طرف اسماعیل علیہ السلام ان کی اولاد میں حضور پاک تھے, ایک طرف جو ہے وہ اسحاق علیہ السلام جن کی اولاد جو ہے وہ بنی اسرائیل ہو جاتی. تو ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نہایت برگزیدہ پیغمبر تھے, اور یہ یونیورسلی ایکنالجڈ فیکٹ ہے کہ ایک لڑی ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یعنی جن کا تعلق جو ہے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ہے, اور دوسری لڑی جو ہے اس پہ بنی اسرائیل کا تعلق ہے, حضرت یعقوب علیہ السلام یا حضرت اسحاق علیہ السلام. یہ تو اسحاق اور اسماعیل دو بچے تھے. ایک ادرس یہ تھا کہ حضرت سارہ جو ہے, سارہ ابراہیم علیہ السلام کی پہلی بیوی تھی سارہ, اور وہ کافی عمر کی تھی لیکن اولاد ان کو نہیں ہوئی. تو انہوں نے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے دوسری بیوی کا انتظام حضرت سارہ نے کیا, حضرت ہاجرہ, اور حضرت ہاجرہ سے پیدا ہوئے حضرت اسماعیل علیہ السلام. اور چونکہ ابراہیم علیہ السلام کافی عمر کے ہو چکے تھے تو اس وقت بھی بڑی تعجب تھی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس عمر میں اولاد پیدا ہو. تو یہ اللہ کا معجزہ تھا. یہ بھی ایک طرح کا اللہ کا معجزہ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نہایت محبوب پیغمبر تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام. تو حضرت سارہ جو ہے انہوں نے شادی کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حضرت ہاجرہ کے ساتھ تاکہ ان کی اولاد ہو جائے. اچھا, اب اللہ کو جو منظور ہوتا ہے, جب حضرت ہاجرہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تو اسی دوران جو ہے حضرت سارہ جو ہے وہ بھی میسے ہو گئی اور ان سے اسحاق علیہ السلام پیدا ہو گئے. تو ایک لڑی چل پڑی ہے اسحاق علیہ السلام کی, انبیاء کی, اور ایک انبیاء کی لڑی چل پڑی حضرت اسماعیل علیہ السلام سے. حضرت اسماعیل علیہ السلام سے جو آگے لڑی چلی اس میں ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخر الزمان, نبی آخر الزمان کا تعلق جو ہے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام, اور اسحاق علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام, اور وہ جو دوسری لڑکی جسے بنی اسرائیل کے پیغمبر جسے بھی, یہ بات ہسٹوریکل بتا رہا ہوں. اب واقعہ کیا ہے, عید, اس عید کا یا اس موقع کا واقعہ کیا ہے جسے آپ نے بھی بتایا. واقعہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی, پیارے نبی ابراہیم علیہ السلام جو کہ بڑی ہی آزمائشوں سے گزرے لیکن تابعداری کمال کی ہے, باپ کی بھی تابعداری کی, اللہ کی بھی تابعداری کی. آزر جو ہے ان کا باپ تھا یا چچا تھا جو مختلف روایات ہیں, لیکن آزر جو ہے وہ بت بناتا تھا اور پورا اسے بت خانہ بنایا ہوا تھا. اب ابراہیم علیہ السلام نے کبھی یہ زبان سے اپنے باپ کو نہیں کہا کہ آپ غلط کر رہے ہیں, ہم بالکل غلط راستے پر ہیں جی. تو آپ نے اپنے باپ کو کچھ نہیں کہا. عمل یہ کیا کہ اوبیڈینس میں اللہ کی رضا میں راضی. بت توڑ دیے کلاڑے سے, اور ایک بت جو ہے بڑا بت اس کے کندھے پر کڑا رکھا. اب وہ باپ آئے, دیکھا کیا تماشا, پوچھا, آپ نے کہا جی یہ جو بت ہے اس سے پوچھے. تو کہتے کیسے بات سکتا ہے. تو بڑے ادب سے آپ نے کہا کہ جو اپنی تحفظ نہیں کر سکتا اور آپ کو بتا نہیں سکتا کہ مجھے کدھر توڑا ہے سارے بتوں کو, تو پھر خیر وہ طریقے سے بات, بڑے ادب سے احترام کے ساتھ. تو پہلی بات تو یہ ہے ان کی, اور پھر دوسری بات جو ہے اللہ کی اطاعت. اللہ کی اطاعت میں یہ ہوا کہ جب دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام لوگوں کو
अल्लाह की तरफ बुलाते हैं। तो नमरूद को बड़ी तकलीफ थी, बहुत तकलीफ उसको हुई कि भाई मेरे मुकाबले में ये वो नमरूद जो है उसको पूछते थे लोग, खुदा मानते थे, तो ये मैं इब्राहिम को कौन सा खुदा, वो इब्राहिम का खुदा और तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इस बात पर उसने लकड़ियाँ, बहुत बड़ा लकड़ियों ला के ना अलाव जलाया, उसमें इब्राहिम अलैहिस्सलाम को डाल दिया। लेकिन वो इश्क था अल्लाह ताला के साथ। वो अल्लामा इकबाल ने कहा ना कि आतिश नमरूद में इश्क जो है आतिश नमरूद से ने इश्क को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिस अल्लाह ताला के साथ मोहब्बत का इज़हार कर रहे। तो अब इसी ज़मन में ये वाक़या है जिसको मना रहे हैं बतौर ईद कुर्बान कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ख्वाब है। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तमाम जितने भी मज़ाहिब हैं, मतलब ख़ासतौर पर क्रिश्चियनिटी, जुडाइज़म और इस्लाम, इस उनकी वो सब उनको बिलीव करते हैं, दे बिलीव ऑन इमामुल अंबिया तभी तो था। जी। उनके देखे ना दो बेटे थे ना, इसहाक अलैहिस्सलाम और इस्माइल इस्माइल ना, इस्माइल अलैहिस्सलाम। इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद जो है वो बनी इसराइल है, जिसमें ईसा अलैहिस्सलाम है, मूसा अलैहिस्सलाम है, सारे अंबिया। और इधर कौन है? हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसमें इस्माइल अलैहिस्सलाम। और यही वाक़या जो है सारा यही हुआ ना कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ख्वाब आया कि मैं अपने बेटे को ज़िबा कर रहा हूँ। अब ये ख्वाब जो है हर एक अनयूजुअल बात थी, लेकिन वो चूँकि अल्लाह के ताबेदार बंदे थे तो बड़ी उसमें ज़्यादा लंबी बात तो की ही नहीं, सीधी बात अपने बेटे से जिक्र की, इस्माइल अलैहिस्सलाम से कि भाई बेटा भी ये ख्वाब है। उन्होंने कहा भाई कर गुजरे आप अल्लाह के सच्चे। देख रहे ये किसी कथा बड़ा एक बाप बेटे के आपने कैसा बयान की बात पड़ी है, तो कैसा बाका है, मतलब वो तो उनका फॉलोअर हुआ ना इब्राहीम अलैहिस्सलाम का। तो क्या यदि उन्होंने कहा अब्बा जी ठीक अब कर गुजरे दुरुस्त। चाचे आप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम लेकर हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम और हज़रत हाजरा दोनों को लेकर इस तरह से वो बात। तो वो ये जो वो ख्वाब आया था, अब वो जब उस दो इसमें इवेंट बन जाते हैं। सही। एक तो यह है कि हज़रत उनको छोड़ आए वीराने में, और दूसरा जो है वो ये है शैतान को कंकरियाँ मारना। तो कुरान मजीद में जिक्र भी है ना, इन्ना सफ़ा मरवा में शायद अल्लाह की निशानी है। सफ़ा मरवा जो है इसके दरमियान ही उनका हुआ ना ये सारा। कितनी बड़ी हज़रत हाजरा की ये जो सिर्फ बतौर माँ, ये माँ और बेटे का मामला करो। माँ और बेटे की माँ की जो अदा है, ये बेटे की पानी की तलाश में, पहले पानी की तलाश में अल्लाह को इतनी पसंद आई कि अल्लाह ने हम सब पर ये वाजिब कर दिया कि आपने भी ऐसे ही करना। आपने सफा बर्बर कह रहे जहाँ वो ने चक्कर लगाए थे, जहाँ पानी की तलाश, ठीक है ना। और अब वो जो है वो हज का हिस्सा बन गया, बगैर हज नहीं हो सकता। तो वही आप फरमा रहे हैं ना, जैसे सफा मरवा में शायद पुराने पाक में ये दोनों पहाड़ियों का जिक्र है, जिनके दरमियान उन्हें वो सारी वो हज़रत हाजरा ने दो। तो उस इवेंट का एक तो ये हिस्सा है, ठीक है। और दूसरा हिस्सा यह है कि जब वो बच्चे को, अपने बेटे को ज़िबा करने के लिए लिटाया, आंखों में पट्टी बांध ली ताकि मुझे कोई तरस ना आ जाए। बेटा है ना, तरस ना आ जाए, आंखों में पट्टी बांध।
और आपने छुरी चला दी कि भैया मेरा बेटा ज़िबा हो गया। आगे देखी तो नीचे एक वो दुम्बा ज़िबा हुआ पड़ता है, वही ले सबको साथ बैठे मुस्करा रहे थे। क्या ये इतना बड़ा मोर्चा है बहुत बड़ा। जिसको दुनिया तमाम मानती है, खा वो ईसाई है, खा वो यहूदी है, खा वो मुसलमान तो है ही हैं, ये सब मानते हैं क्योंकि इब्राहिम जो है इमाम उल अंबिया थे। यहूदियों के इमाम हो, ईसाइयों के इमाम हो, पैगम्बर हो, यहूदियों के पैगम्बर हो, ईसाइयों के पैगम्बर हो और हमारे पैगम्बर हो, उन सब के बाप थे इब्राहिम अलैहिस्सलाम। दुरुस्त। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की क्या बात थी, उन्होंने मतलब आप देखें ना बड़े लंबी चौड़ी कहानी बन जाती है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ कितनी आजमाइशें आई। पहले बाप के साथ देखें गुस्ताखी नहीं की, बुत तोड़ दिए, लेकिन कहा जी कि इनसे पूछे अल्लाह का हुक्म भी हो गया, बाप की गुस्ताखी भी नहीं की, आप इनसे पूछे। ये नहीं कहा पागला पागला, आज कहे प्योर कहे पागल प्योर, तो ये उनकी बाप के साथ एहतराम किया, एक ये मिसाल है। दूसरी बात जो ये है कि अल्लाह के हुक्म के मुताबिक वो कूद गए आग में। नमरूद ने जो आग लगाई थी उनको जलाने के लिए, वो गुजार बना दिया अल्लाह ने उसको, ठीक है ना। तो कहते हैं कि वो जब वो आग में उनको डाला गया तो वो शैतान भी आया था हाँ, उस वक्त उनके करीब। वो जो है वो शैतान जो है ना बड़ा वाज़ेह तौर पर ना, जो बड़ी बरगज़िदा हस्ती है ना, उनको उनके मैं ये तो नहीं कहता कि वो ज़रा लफ्ज़ बहकाना तो मैं नहीं कहता, उनको मतलब थोड़ा सा खुद डाइवर्ट अपनी करने के लिए, यानी कि खुद अपनी जो है ना अपनी खबासत। निगरानी में, क्योंकि जो कमजोर लोग हैं उनके लिए तो चेले वो भेजता है। हाँ, अब वो खुद नहीं जाता वहाँ, अंबिया के लिए खुद जाता है। खुद जाता है जब जो दरबार में होते ये बड़ी अच्छी बात मैंने की है कि अंबिया के लिए और चेले नहीं भेजता, वो आम लोगों के लिए चेले भेजता है, तो चेले ही काफी। हम जैसे लोगों के लिए चेले भेजता है। अच्छा, एक मजाक बना हुआ है, वो एक बंदा इंटरव्यू ले रहा था, मोइन अख्तर का प्रोग्राम था, हाँ, तो वो एक दिन उसने शैतान को मदऊ किया था इंटरव्यू ले रहा था, अच्छा। साथ ही इंसान बैठा हुआ था जो कि रिश्वतखोर था, वो बेईमान आदमी था। अच्छा, अब क्या था कि उसने उस आदमी से कहा कि भाई ये शैतान को देखें, टेस्ट करें ज़रा कि लाहौल पढ़ने से शैतान गायब होता है नहीं होता। पता है वो। अच्छा, अब उसने लाहौल पढ़ी तो वो जब खुद उसने पढ़ी तो वो खुद ही गायब हो गया, शैतान वही रह गया। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि वो किसी बंदे ने कहा जब आप शैतान को ककरे मारे होते ना तो शैतान हंस रहा होता है, तो क्या तुम तो मेरे भी उस्ताद हो। क्योंकि असले वाली बात नहीं है, लेकिन ये लम्हा फिक्री है हमारे लिए कि हम ये लेके तू उसका मुंह में डाल, वो तेरे मुंह में डालेगा। तो ये एक बना हुआ है शैतानों का। शैतान जो है वो अज़ल से इंसान को बहकावे में लाने के बहकावे लिए कोशिश या में गुमराह लगा करने में लगा हुआ है। बल्कि मैं एक जगह पढ़ा था कि जब इंसान दुनिया से जा रहा होता है उस वक्त भी आखिर वक्त तक वो कहता है कि तू जो है ना मतलब अल्लाह से भटकाने की कोशिश करता है, तो वो अपना काम पे है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने हमें इंस्ट्रक्शन मैनुअल दिया हुआ है, कुरान मजीद की शक्ल में एक बहुत बड़ा मसले राह दी हुई है। जी हाँ, अच्छा ठीक है। तो अब ये तो हो गई ना बात। अब ईद के बारे में जब बात की जाए कि आप पाकिस्तान के भाई से मैं करता हूँ, प्यारे भाई आप बताइएगा कि पाकिस्तान में ईद आप कैसे मनाते थे? ईद का क्या मतलब ख़ास कोई आपकी जो है वो एक्सपीरियंस हो जब तो शेयर करें। शुक्रिया भाई, माशाल्लाह बड़ा अच्छी याद आपने और भाई ने बड़ी इसमें जामे तौर पे गुफ्तगू की। और तो ऊंचे बात मेरी देखा सॉरी। इसमें ये है कि ईद की जो त्यौहार है वो क्योंकि मुसलमानों का सबसे आम त्यौहार है, जैसे दूसरे त्यौहार हैं, इसमें ईद उल अज़हा का जो तरीक़ाकार था कि ईद उल फितर जो है वो सेवियों वाली ईद कहते थे और ईद उल अज़हा जो है वो बकरे वाली ईद। सो ये सेवियाँ वगैरह ये बकरा ईद। तौर पे नहीं बनती थी, बहुत कम होता था कभी शाम बनाते। वैसे सेवियाँ तो अब भी बनेगी क्योंकि वो बकरे वाला वो नाश्ते क्योंकि सेवियाँ खाने का शौक है, इसी बहाने सेवियाँ खाई जाती है। क्योंकि वो बकरे वाला कंसेप्ट नहीं है कि हमने यहाँ ऐसे हालात बाहर जगह
कनाडा में बकरा नहीं इस तरह नहीं मिल जाता है, ऐसी कोई नहीं मिल जाते, लेकिन वो होता है जिस पाकिस्तान तरह में तो पाकिस्तान में हलाल करते हैं वो आप तो वो घरों में नहीं अलाउड है, आप नहीं कर सकते। यही है। वो एक कंसेप्ट था कि उसके लिए पूरी तैयारी करते थे, सुबह उठना चाहिए, लेकिन आप फॉर्म्स में जाके कर सकते हैं, फॉर्म लैंड में। पढ़ने जाना, नमाज पढ़ने का था कि वो हमारे नर्सिंग ग्राउंड थे वहाँ पे या तो मौसम में जाते थे नमाज पढ़ने, उसकी तैयारी करना सुबह सुबह। इवन हमने गराज जो आपका है उसे भी एक दस दो दफा किया है। हाँ जी, कसाई मिल जाते बुला के तो डिज़ाइन महंगे होते हैं और उनका ऑनलाइन बुकिंग होती है, सारा बिल्कुल चेंज हो गया। बिल्कुल सिस्टम अब जो है ना काफ़ी तब्दील हो गया। वो ये है कि वो उसमें होता था कि हम आते थे और आके फिर पहला काम यही है कि साई तलाश करें और तलाश सुबह करें। कराना है। उसकी भी बुकिंग होती थी बाकायदा, मेरे ख्याल से अगले दिन आपको या उससे अगले दिन। 3 दिन तक है। हाँ, तो किसाई साहब तो बिजी बंदे होते थे उस वक्त। वो अक्सर वर्ड की साई मिलते थे क्योंकि हमें- वर्ड कसाई। मुझे तो याद है बड़ कसाई वो होते हैं एक जो बकरा हलाल करके दूसरे घर में ये बड़ा तीसरे- important चीज़ है। उससे आगे छठे सातवें 10वें घर हर इलाके हर में खादी का बकरा एक ही पड़ा हुआ है। कसाई लगा हुआ है कसाई। 5-5 6-6 घरों में। ये कंसेप्ट था बड़ा। ये बड़ी अच्छी बात दूसरे की आपने। किसाई जो थे बड़े महंगे होते थे, उनका दिमाग भी खराब, हमारे को टाइम नहीं है जी बाबूजी ऐसे आज सही। नहीं आ सकते। सही। अगर उनको ज़्यादा पैसे दो तो फिर वो भागे आते हैं। ये अच्छा, इसमें अमल मैं आपसे पूछता हूँ कि असल बात यह है कि वो लोग जो प्रोफेशनल कसाई नहीं है वो पहले बहुत कम पे आए थे। आमतौर पर ये भी एक था कारोबारी था कि हलाल करना है और गोश्त काटना कौन सा भी उसके लिए साइंस और टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है। तो बहुत सारे बंदे जो है ना वो ऐसे ही, लेकिन जो प्रोफेशनल कसाई है ना वो इस तरीके से करते हैं, ज़िबा करते हैं कि ना जानवर को इतनी वो बड़े प्यार से उसको ज़िबा करते हैं, क्योंकि ये बड़ी चीज़ होती है कि जिस जानवर को आप ज़िबा कर रहे हैं उसको आप खिलाते पिलाते हैं, इससे पहले उसको प्यार करते हैं। ये एक अल्लाह की राह में आपने चीज़ देनी है ना। और ये भी नहीं कि भी गंदा बकरा बकरा ही लाना होता, अल्लाह दे हजूर जी कुर्बानी पेश करिए वो बड़ा अच्छा सेहतमंद और खूबसूरत बकरा या जो भी जानवर है। उसका बाकायदा बकरा ज़िबा करने का भी प्रोटोकॉल और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, जी जी उसको फॉलो करना होता है कि उसमें वो वुज़ू करके और फिर हाँ जी जी छुरी बिल्कुल, जो- बल्कि रोज़ा भी रखते छुरी के थे, ऊपर जो है बाद लोग रोज़ा भी रखते थे। छुरी के ऊपर जो है आप पढ़ना ठीक है, तकबीर पे पढ़ते हैं और फिर दुआ करते हैं, उसके बाद बकरे को नियत है ना। नियत करते हैं। माशाल्लाह, बड़ी अच्छी बात। तो मैं भी थोड़ा सा इसमें ऐड अप करूंगा कि ईद आप अम्मी के हवाले से बात करोगे, आपकी माँ के हवाले से याद है? अबू मुझे ईद के बारे में बात हो रही है। अच्छा। तो ईद का ये है कि मुझे याद है कि पाकिस्तान में जैसे भाई ने फरमाया वैसे ही ईद हुआ करती थी। और क्योंकि ज़ाहिर है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ईद का यही है कि सुबह उठ के नमाज के लिए तैयारी की जाए और नए कपड़े पहन के मस्जिद की तरफ रवाना हुआ जाए और वहाँ पर नमाज अदा की जाए। उसके बाद जो है फिर जैसे कि कुर्बानी का जो एक जिसे कहते हैं ना कुर्बानी की रस्म अदा की जाए। तो इसी तरह यहाँ पर भी मुझे याद है कि यहाँ पर भी, क्योंकि मैं काफ़ी अर्से से यहाँ पर हूँ, यहाँ पर भी यही है कि नई शलवार कमीज़ का जोड़ा पहने बंदा। अव्वल तो ये कि शलवार कमीज़ लेने से पहले 1-2 दिन पहले ही तैयारियाँ होती हैं। आप जाते हैं बाज़ार, जाके अपनी पसंद की मनपसंद शलवार कमीज़ और जूते वगैरह बाय करते हैं। तो उसके बाद जो है आप तैयारी मतलब आपकी मुकम्मल होती है। और फिर बकरे का तो आपको ज़ाहिर ऑब्वियसली पहले बुकिंग करवानी पड़ती है। यहाँ पर भी स्लॉटर हाउसेज़ हैं, आप बाकायदा ये फार्म लैंड्स में जाके ये बकरा हलाल कर सकते हैं, आप अलाउ है। तो वो जो मतलब आपकी मर्ज़ी है, आप किस तरीके से आप ईद मनाना चाहते हो, कि अगर आप जितने भी बकरे हैं वो ज़बिया हलाल ही होते हैं। तो फिर यहाँ पर ये वही चीज़ नमाज के लिए जाना और नमाज के लिए नमाज पढ़ के फिर सबसे ईद मिल के और फिर मीठी चीज़ें भी खाना नाश्ते में। फिर उसके बाद जो है दोपहर को फिर फैमिली में गैदर करना, एक दूसरे से मिलना और 1 डिश पार्टी करना। हमने कुछ बना लिया, कुछ कज़न्स ने बना लिया इस तरह का। तो
تعالیٰ کا شکر ہے کہ عید کا تہوار جو ہے وہ اچھا گزر جاتا ہے، اور عید کی جو اسپرٹ ہے وہ یہی ہے کہ عفو درگزر کیا جائے اور قربانی کی جائے. کسی کے ساتھ اگر ملال ہے، کیونکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ارشاد ہے کہ مصافحہ کرو کینہ جاتا رہتا ہے. بالکل. کہ اگر آپ کسی کے بارے میں کچھ گمان ہے تو اسے مصافحہ کر لو تو آپ کا کینہ ختم ہو جاتا ہے. اور یہ بات بہت بڑی فیکٹ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا بالکل صحیح فرمایا کہ ہاتھ کسی سے ملانے سے آپ کی سارا بغض یا جو بھی آپ کسی کے بارے میں کوئی بات ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، وہی دم توڑ جاتی ہے. تو یہ کیونکہ ہم مسلمان ہیں، ہماری نیچر کیا حصہ نہیں ہے کہ ہم کسی کے بارے میں کینہ رکھیں، یہ نیچر نہیں ہے. کیونکہ مسلمان بھائی ہیں، ٹھیک ہے، ڈفرینسز ہر جگہ ہوتے ہیں اور ڈفرینسز رہیں گے کیونکہ ہر انسان دوسرے انسان سے مختلف ہے. آپ مطلب فنگر پرنٹس بھی چیک کر لیں نا، اپنے تھم امپریشنز چیک کر لیں، ہر بندہ دوسرے سے مختلف ہے، تو وہ اس حد تک ٹھیک ہے. تو یہی چیز مقصد جو عید قربا کا میں سمجھ رہا ہوں کہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم کہ اللہ کی رسی کو تھامے رکھو تفرقے میں، اور یہی انفارچونیٹلی ہم کر رہے ہیں کہ ہم عالم اسلامیت میں دیکھیں اتنے سارے مسلمان ممالک ہیں لیکن ہم اپنے مسلمان بھائی جو تکلیفوں میں ہیں ان کو انصاف تک نہیں دلوا سکتے. ہم آپس میں ایک دوسرے کے گردنیں پکڑنے کے چکر میں ہیں. تو یہ چیز جو ہے ایک لمحہ فکریہ ہے اور اللہ کی طرف سے ہمارے لیے ایک بہت بڑی تنبیہ. اللہ تعالیٰ نے بہت پہلے ہمیں کہہ دیا تھا قرآن مجید میں، یہ بہت پہلے فرما دیا تھا اللہ تعالیٰ نے، اور ہم لوگ جو اللہ تعالیٰ کے نافرمانی کے راستے پہ چل رہے ہیں. اور عید کا مقصد، عید قربا کا مقصد بھی یہی ہے کہ مسلمان سیکریفائز کریں. خلیفہ ہارون رشید کا جو دور تھا، خلیفہ ہارون رشید جو ہے وہ خلیفہ تھے، اور وہ جب رات کو بھیس بدل کے اپنی عوام کو دیکھتے تھے کہ کوئی تکلیف میں تو نہیں ہے، کوئی مصائب میں تو نہیں ہے، کیونکہ ان کو نیند نہیں آتی تھی جب تک ان کی عوام جو ہے وہ ان کو تکلیف میں اور وہ جو ہے آپ کے حکمران سوئے پڑے. تو یہی آپ پاکستان میں دیکھ لیں، آپ کے جو حالات چل رہے ہیں کہ حکمران جو ہیں انسان کو تو انسان ہی نہیں سمجھتے. وہ تو سمجھتے ہیں کہ ان کے ووٹ لے کے آتے ہیں لیکن بھول جاتے ہیں کہ بھائی ہمارے پر کتنی بڑی ذمہ داری ہے اللہ کی طرف سے، پورے ملک کی ذمہ داری ہے. تو یہ چیز عید کا یہی ہے پیغام سب کے لیے کہ قربانی. دیکھو بیٹا، میں ایک بات تھوڑی سی ایڈ کر دوں. پاکستان کی حوالے سے بات میں کروں، پاکستان میں بڑے بڑے عظیم لوگ بھی پیدا ہوئے ہیں، اور جو میرے اپنے زندگی میں جو چیزیں دیکھی، وہ ایک آدمی تھا، اس کا نام تھا سردار عبدالرحمن نشتر. سردار عبدالرحمن نشتر جو ہے یہ گورنر تھا پنجاب کا، اور یہ رات کو یہ نکلتا تھا بھیس بدل کر، کبھی ٹانگے پہ جا رہا ہے، یعنی عوام کے حالات کو معلوم کرنے کے لیے ٹانگے پہ جا رہا ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے، اور ایک دفعہ کی بات ہے، ایک مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ وہ مختلف شہروں میں جاتا تھا. ہم ایک مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے، یہ میں خیال میں یہی جماعت جو ہے وہ شاید عید کی نماز تھی، اور رش بڑا ہوتا ہے. جب آپ لیٹ بھی آتے نا تو آپ کو جوتوں میں جگہ ملتی ہے. اب تو وی آئی پی کے لیے نا وہ آگے جگہ رکھتے ہیں باقاعدہ. عبدالرحمن نشتر واز اے پرسن، میں گواہ ہوں اس کا، دنیا میں وہ نہیں ہے، میرا نام چاچا ماما تھا، لیکن اس کی عظمت کی نشانی میں بتا رہا ہوں کہ وہ نماز پڑھنے آیا. ہم بھی چونکہ لیٹ ہو گئے تھے تو ہمیں جوتوں میں جگہ ملی، اور وہ بھی آگے پیچھے جوتوں میں بیٹھ گئے. اندازہ کریں آپ، ایسے ٹھیک ایک آدھی بندہ تھا لیکن یہ بات گریٹ مین. وہ رات کو بھیس بدل کے نکلتا، قائدام کے فرسٹ لیفٹیننٹ میں تھا. اور یہ بات کیا ہوئی ہے، بات آگے چلی نہیں ہے، لٹیرے آ گئے، دھوکے باز آ گئے، تو اس سے بات چلی نہیں ہے. تو اب یہ جو آپ بتا رہے ہیں نا قربانی والا کنسیپٹ، یہی ہے کہ
इज ग्रेटर देन माइन, कि भाई तुम्हारी ज़रूरत मुझसे ज़्यादा है, मैं कुर्बानी दूँ ताकि उसका काम हो जाए। आज कल कहते हैं पाए लाओ तो मेरा काम पहले कर दो, फिर जहर दो तो पहले मेरा काम कर दो। नहीं, ये जो है ना, ये माशरा मैं माफ़ी चाहता हूँ, मुझे नहीं कहना चाहिए, मेरे अंदर ही बहुत खामियाँ हैं, ये इस्लामी माशरा नहीं है, ये वो नबी पाक की तालीमात पे चलने वाला माशरा नहीं है। ये सब जिसे कहते हैं रंगबाज का अलग रंगबाज किस्म का माशरा है, जो नाम के मुसलमान हैं और अमल के हिसाब से वही है जो दूसरों की बात करते हैं। कोई मुझे बता दे, अब जिसका नाम है अब्दुल रशीद का मैं नाम लिया, ठीक है, या कायद आज़म थे या चंद एक और बंदे हो। मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ कि बहुत सारे नेक लोग पाकिस्तान में अभी भी मौजूद हैं, नो डाउट अबाउट दैट, जिसकी वजह से अल्लाह की रहमत अभी चल रही है और बहुत सारी नेक रूहें आबाद हैं, इसमें नो डाउट अबाउट। तो मैं सिर्फ इसे बात करूँ कि इंटरनेशनल लेवल पर जब आप बैठते हैं तो जब पाकिस्तान का वो लेवल देखते हैं तो आपको बड़ा दुख होता है कि पाकिस्तान का वो मुकाम जो कि कायद आज़म के दौर में था या उनके इर्द गिर्द के दौर में था, देखिए ना, हजूर के अब वो नहीं है। हम सब हजूर के गुलाम थे। हजूर ने जो हुक्म दिया है वो हमारा, उसको बजा लाना हमारा फर्ज है। अलबत्ता एक चीज़ है कि इमरान खान गवर्नमेंट से मुझे एक्सपेक्टेशंस हैं कि इमरान खान विल डिलीवर होपफुली, कि वो कोशिश करे। पता है बात तो- यह बने, इमरान खान इज इंडिविजुअल। अब एक इंडिविजुअल जो है उसकी एफर्ट से कैनवस पर कोई तरफ आपको बदल, बट डैडी उम्मीद पे दुनिया कायम है ना। हाँ, नहीं, बात यह है कि हमें उम्मीद तो रखनी पड़ेगी, उम्मीद का दिया तो जलाना पड़ेगा। बात से अगर नहीं है। जलाएंगे वो बात तो फिर भी आगे वो भी नहीं बड़ा मिलेगा। अच्छा कहा है, मैं भी यही कहता हूँ कि जैसे एक शायर ने कहा था, शिकवाए जुल्मत शब से कहीं बेहतर है अपने हिस्से की शमा जलाते जाओ। बिल्कुल लेकिन शिकवाए जुल्मत शब करना ज़रूरी है जी, बिल्कुल सही। ताकि पता चले। बेहतर तो ठीक है, वो बेहतर इसलिए है कि रोना हर बार रोना होता रही है, सही लेकिन शिकवाए जुल्मत शब तो करना चाहिए। सही अंधेरे को उजाला नहीं कह सकते। नहीं, कभी नहीं कर सकते। माशाल्लाह बड़ी अच्छी डिस्कशन हुई भाई। आप एंड में आपके मैसेज देना चाहें, अबू भी मैसेज देंगे एंड में, और फिर इसके बाद हम ख़त्म करते हैं प्रोग्राम को। मैं ये कहूँगा कि ये जो अज़ा का मकसद है वो एक किस्म का रिवाइवल है और एक प्रॉमिस है अल्लाह ताला से और अपनी ज़ात से कि कुर्बानी की जो लाजवाल मिसाल बाप की तरफ से जो हमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सूरत में उन्होंने अपनी बेटे की कुर्बानी की, और माँ की तरफ से हज़रत हाजरा की तरफ से, ये एक बड़ी दरख्शंदा मिसालें हैं। उनको अगर हम जो है वो संग मील और अपनी ज़िंदगी का जो है वो एक पिवट बना लें, अपना एक संग मील बना लें, तो हमारे लिए बहुत सी हमारी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो सकती है और हमने जो है ज़िंदगी को सही तौर पे और आसानी की तरफ पहुँचा। माशाल्लाह, थैंक यू वेरी बड़ी मच। अच्छी बात। अच्छा अबू, आप भी 1 मिनट में बता मैं बस दीजिए। यही कहूँगा कि जो ये मैसेज है ईद कुर्बान का, वो है अल्लाह के सामने अल्लाह की अताअत और इंसानों के साथ भलाई। अल्लाह की अताअत और इंसानियत के साथ भलाई। चलिए, शुक्रिया। तो बहुत ही माशाल्लाह बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रहा और बड़ी मेहरबानी अबू आपकी और भाई, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन इकराम, आज हम ख़त्म करते हैं इस प्रोग्राम को और आपसे उम्मीद करते हैं कि आप अपनी आरा से हमें मुस्तफ़ीद करेंगे, और इस प्रोग्राम को लाइक करिए, शेयर करें, हमारे चैनल को बुखाराई फादर्स एंड सन्स, और हमें अपने आरा से ज़रूर बताइएगा कि प्रोग्राम में हम क्या बेहतरी ला सकते हैं। और अपना ख्याल रखें, अपने रज़ी रुग़बा का ख्याल रखें, और ज़ाहिर है ईद कुर्बान है,
عید قربان کا آپ سب کو بہت بہت عید مبارک ہماری طرف سے، بخارا فادر اینڈ سنس کی ٹیم کی طرف سے، اور اپنا خیال رکھیں اور ہمارے لیے دعا کریں۔ اللہ حافظ۔